in these days, just to summarize, how to live out this purpose in this life. So the tawaf was training. Tawaf एक मश्क है, बताया गया उस मकसद को पूरा कैसे करना है. वही नबी अलैहिस्सलाम ने सिखाया तवाफ ऐसे करना है, meaning follow the Prophet अलैहिस्सलाम. So like the body follows, the Kaaba is in the center, keep Allah Azza wa Jal in the center of your life, His hukam, His pleasure, and then live your life. Do anything, business, look, keep Allah Azza wa Jal in the center. What does Allah want from you? Marrying, keep Allah. Playing, keep Allah subhanahu wa ta'ala in the center. Whatever you do, that you are revolving around the hukm of Allah. ये training कराई गई है तवाफ में. So that's how we should be living now. Now tomorrow, कोई काम भी करें कि we are near about the hukam of Allah. We don't just go. Third thing was fast. एक फास्ट होता है. Fast is a training. No रोजे रखे या एक रोजा रफा का रखा. Fast is a training how to avoid things on the command of Allah subhanahu wa ta'ala. So this is training. The one day training fast is lifelong fast. That is training you how to fast from haram, from kufr, from shirk, from nifaq, from hypocrisy, from zina, from backbiting until death. This is a training. कि एक लंबा रोजा रखना है, मौत तक रोजा रखना है. And you will. And this is such fasting. देखे बंदा भूल के खा ले उसका भी रोजा यानी ठीक होता है, चला जाए, यानी रोजा स्वाब मिल जाए. So in this fast, if you forgetful, you do something, your fast is still valid. But this fast is such, if you intentionally do something, तौबा कर लो, आपका रोजा पूरा हो गया. This lifelong fast. दूसरा रोजा नहीं, भाई पूरा खाना खा के तो जोर के वक्त हाँ या अल्लाह तौबा में ऐसे गलती हो गई है तो रोजा कबूल होना, रोजा नहीं आपका, वो खैर रखना पड़ेगा. लेकिन बट दिस वन अदर फास्ट विच इज द लाइफ लॉन्ग फास्ट, इसमें अल्लाह ने ये गुंजाइश दी है कि अगर भूलिए फिर भी आपका रोजा है, अगर जानबूझ के तोड़ दिया है तो तौबा कर लो, dispatched, and you have your fast continue. तो ये जो one day fast was a training how to avoid today, tomorrow, and बार बार. This shows you have the ability. ये जो बंदा रोजा रख लेता है ना, ये दिखा रहा है कि मुझ में ताकत है बचने की. वैसे मैं जानबूझ के मस्ती आई हुई मैं नहीं बचता, लेकिन मैं चाहूँ तो मैं बच सकता हूँ, चाहूँ तो मैं हलाल से भी बच सकता हूँ. A fasting person is expressing the ability in him that really if I want to stop what is haram, I can stop from halal. This means, and when I don't, I just don't want to stop. But if I do, I can. So the fast shows you your own ability, your own power, that you can avoid anything. Then what is the other? Pelting stone. शैतान को कंकरियां मार. अभी भी हाजी हो मार कंकरियां मार. What is the lesson there? वो हमें life long lesson दे रहा है. That yes, shaitanic invasion, waswas, all other things will come. What you do, you carry on like Hazrat Ibrahim alayhi salam was coming there and shaitan came and said, oh, you are Ibrahim, why you are taking your son Ismail? It was only a dream. He pelted and carried on walking. वो रुके नहीं and ward it off. Ask Allah subhanahu wa ta'ala for protection. ये तरीका बताया गया था. When you will be in this life, people, shaitanic jinnat, they will come and they will show you all kind of, the grass is green on the other side and this and that and whatever. At that time you should carry on and also actually throw their ideas back actually with actually stone. What does it mean? Whatever effort, whatever power you have, you actually ward it off. You don't entertain it. हम ऐसे कभी शैतान आया है तो ना गल करनी, अच्छा दस के गल है, बस वहीं से बंदा फंसा है. सुननी नहीं, आगे जाना है. मीनिंग एक्चुअली तो उसको पत्थर मारो, आगे जाओ. ये जितने सुनते हैं चुप करके बैठते हैं. शैतान comes and say, put an idea in your mind and you
listening, and you entertain it and listen. That's where the problem starts. ये भी हज़रत सबक मिल गया हमें कि ज़िंदगी में. And 749 कितनी दफ़ा है वसवसे डाले. That's what you do. He can't stop you. He can't stop you. He can only invite you. उसको जो है जो को. Other is sacrifice. Sacrifice is what? Sacrifice is of the animal. It's not the animal. It's actually your most beloved thing, which is your life. You are representing that. So as though in lifetime you might have to sometime sacrifice anything which you like very much. Let's say you might, मुझे आपको ड्रग बड़े पसंद है तो उसकी फिर कुर्बानी उसको ज़बह करना कर दे. आपको ये चीज़ पसंद है, if you like any other, आपको हराम पैसों का चस्का पड़ा हुआ तो वो भी, that you are willing to sacrifice. ये इस तरह success you will again through the year. And lastly, if you do all these things, Eid आ गई, कल ईद गुजर गई. Eid is then final version how Allah wants you to live this life, the result. What do you do in the morning of Eid? Allah की बड़ाई, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allah की बड़ाई. And a person should glorify Allah subhanahu wa ta'ala. He wakes up कि अल्लाह तेरी ताकत है जिससे मैं ज़िंदा हो गया, जिससे मैं उठ खड़ा हूँ, मरा नहीं, ये हुआ, सारी कायनात चल रही. When you say alhamdulillahilladhi ahyana ba'd, अल्लाह तेरा शुक्र है मुझे तूने. Allah has not revived you only. सूरज को भी अल्लाह जिंदा रखे हुए है, आसमान को भी रखे हुए है, कायनात को रखे तब है. वरना आप हो भी जाए जिंदा, सर पे सूरज आ गिरे तो समझ आ जाएगी. सिर्फ आपकी ज़िंदगी नहीं, हर कायनात की हर एक चीज़ को अल्लाह ने कायम रखा हुआ. सो ग्लोरीफाइंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला. ईद वाले दिन ये होता है अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह. देन यू आर कमिंग टुवर्ड्स Eid prayer, which is shukr, meaning start your day with shukr, thankfulness. Shukr means focus on what you have and focus what you can share. And na shukri is focusing on what you don't have and making sure not sharing what you have. Usko kehte na shukri, ungratefulness. Because that's the mentality, if not there. So a state of shukr, meaning Allah is bestowing and I want to share. So this is, and third, you are shown, you wear good clothes. Okay, that's cleanliness. Allah loves every day that you are clean, you look beautiful. This is for every day, not for Eid only. And then you meet people, meet family. This is how you should be every day, meeting people, reconciling with people, greeting people, happily greeting people, giving them to eat. What more you do is actually sacrifice of the animal, distributing 1/3 for the poor, 1/3 for the relative. This is teaching you that the money, the property which you have, share it. Share it with the relatives. Share it with the poor. And Allah bless you more. And this is the day of Eid. इस तरह सारी ज़िंदगी गुजारनी. ये देखें, ये सबक मिल रहा है, ये असरार इस ईद के दिन के. हमने ईद आई, खाया पिया, ईद गुजरी नहीं. ईद तरीका सिखा के गई है कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है. ये नहीं है कि एक दिन खा पी के कपड़े पहन के दूसरे दिन लड़ाई शुरू कर दी और जी मतलब है कि यानी सारा फसाद हो गया. बंदे को खुला जहन रखना चाहिए, खुला. अल्लाह अज़्ज़ व जल also then deal with you like you deal with the creation. मैं अब saying to some, एक बंदा मुझे कह रहा है फलां दोस्त है मेरा, मैं उसको पैसे भेजे या रिश्तेदार है, वो जी मैं उन्होंने 10,000 रुपया भेजा या 20,000 जो भी है, कोई कपड़े ले लिया, वो जूतियाँ ले आया, उन्हें अपने मिसाल के तौर पर और कोई चीज़ ले ली है, वो उन्हें अपने फ्रेंड को खिला देता है. बात यह है कि आप जो देते हैं किसी को, रिश्तेदार है या दूसरा है, देखिए जो बंदा कोई दूसरी चीज़ लेता है उसकी कोई मजबूरी होती है, बाज़ दफ़ा होता है उसको उसकी ज़रूरत हो. वो हमारे जो वली और औलिया हमें सिखाते हैं कि अगर आपसे कोई बंदा ले लेता है, बेईमानी से किसी से ले लिया उसने, कोई थोड़े पैसे खा गया कोई चीज़, तो फरमाते हैं फिर भी अच्छा खुश हो जाओ, माफ़ करो और खुश. उसने कोई चीज़ ही ली है ना,
20,000 5 10 पाउंड 20 पाउंड 100 पाउंड खा लिया उसने, तो क्या तुम माफ़ कर दो, बम बड़ा जहन रखो, यानी उसका पीछा ना करो, ये इसने ये किया है मैं इसको ये कर दूंगा। फिर जो बंदा बंदों के साथ हिसाब किताब सख्त करता है, फिर अल्लाह भी हिसाब किताब सख्त करता है उसके साथ। ठीक है, आपने दे दिया, आप समझे कोई बंदा खा जाएगा, कोई नहीं खाएगा, कोई कुछ कर लेगा। योर माइंड शुड बी सच दैट इफ समवन डिफ्रॉड यू 10 पाउंड, यू शुड हैव सच बिग हार्ट। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं यार, 10 पाउंड ही खा गया ना, जाके कोई चीज़ ले लेगा। दिस इज द मेंटेलिटी। और हमारा है कि 10 पाउंड दे के उसका वो पीछा करते हैं, उसकी वो तूड़ मिट्टी पलीत करते हैं, मैंने दिया। तो अल्लाह पाक भी कहता है भाई इससे तो ना ही देते तो बेहतर है। अल्लाह अज़्ज़ व जल सेड इन द कुरान कि वला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नी वल अज़ा, कि अपने दिए हुए सदक़ात, द मनी, थिंग्स विच यू गिव टू पीपल फॉर माई सेक, डोंट डिस्ट्रॉय them by actually sending them reminders, and by actually causing them stress कि मैंने ये किया वो किया वो किया। तो ये इतना बंदे में होना चाहिए थोड़ा सा कि भाई इतनी गुंजाइश कि भाई किसी ने गलती कर दी, माफ़ करने की पॉलिसी होनी चाहिए। खा गया थोड़ा, चलो कोई बात, अच्छा है कोई चीज़ ले ली उसने। इस तरह ये औलिया अल्लाह का, देखे ना, नबी अलैहिस्सलाम ने ये मेंटालिटी सिखाई कि दैट इफ़ यू गिव समवन एक्चुअली ओन्स यू मनी, आपने कर्ज किसी ने दे दिया तो फरमाया कि ज़्यादा वापस करो, रिटर्न मोर। समवन गिव यू 100 पाउंड, रिटर्न 110 20। यह नहीं है कि 10 पाउंड के वापस करो, वो भी रोते पीटते। एंड इफ़ you have to, if you have loaned money to someone, then be happy with 90। 100 किया, 90 मिल गई, 80 मिल, खुश हो जाओ, बस ठीक है। ये भी वो 10 का भी आपको अजर मिलता रहेगा। हमारे यहाँ तो कि बीवी को पैसे पहले तो देते नहीं हैं, या देते हैं तो उसको हाँ कहाँ लगाए हैं, मुझे हिसाब दो। ये तरीका नहीं ठीक है कि बीवी खामद को पूछे, खामद कमा रहा है, खामद मीने अच्छा साहब दो, कितने है कितने लाया है, मां नू क्यों दिता है, ऐ किधर कीते नहीं, ऐ किधर कीते ने। वही तो खुदा भी इस तरह साहब नहीं कर रहा जिस तरह ये कर रहे हैं। तो जब बीवी नू 100 पाउंड दे देता, वो कितने लाया पिछले महीने, तू ऐ कीता। सो देन एवरीथिंग गो अंडर द कारपेट, हाइडिंग, वो सारा कैमोफ्लेज हो जाती है। देन मीनिंग एक्चुअली पीपल हाइड, दे डोंट मेंशन टू यू। तो खुला दिल होना चाहिए, चलो कोई नहीं, अल्लाह पाक, और आपने कौन सा अपनी जेब से देने, अल्लाह से ही लेकर देने हैं ना, तो अल्लाह पाक और दे देता है। और दोज पीपल हू फाइट ओवर दीज थिंग्स एंड आर जस्ट वेरी स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रिंजेंट, Allah does not like this type of people. Allah likes generous people, giving people, forgiving people, even knowingly। कितने मशाइख हो, उनको पता है हमारा फलाना बंदा हमारे साथ धोखा कर रहा है, देखा ना। Allah gives knowledge. Sayyidina Abdul Aziz Dabab says that when some awliya Allah are like this, when person comes and their inner self is against them and putting objections, but outwardly they show loyalty, whatever. In spite of knowing, they still compassionate with the person. वो कहते फिर भी इसको दे दो, इसके साथ अच्छे तरीके, पता भी है ये अंदर से नहीं। So then उसका फ़ायदा ये होता है कि then Allah Azza wa Jal deals with you like this. You cover the sin, Allah covers. You become generous, Allah Azza wa Jal become generous. If you start actually forgiving people, then you also get. So we all want that from Allah, but we are not doing it through the creation. We become too strict, and then because of this, there are so many fights, there were so many. लड़ाई सबसे ज़्यादा बुजुर्ग फरमाते हैं, लड़ाई होती है जिन दो मियाँ बीवी हैं, दोस्त हैं, मकसद ज़िंदगी का नहीं, उन्होंने सिर्फ बेमकसद लड़ाई करनी। फिर क्योंकि मकसद ही कोई नहीं, फिर ये इधर क्यों गया है, ऐ क्यों होया, फलां क्या है, मैं इत्थे जाना, मैनू टाइम नहीं दे रहा, ये हो रहा, फलां हो रहा। मकसद व्हेन देयर इज अ पर्पस, उसको भी पता है देयर इज अ हायर पर्पस, आई हैव टू, वी आर क्लेमिंग आवर किंगडम ऑफ हेवन। हाँ ये कर रहे हैं, तो उनको फिर ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं, वरना जो है ऐसे ही बंदा करेगा। पहले तो शैतान खुश करता है बंदे को, भाई हाँ देखो ना दूजे बेचारे डेके लगे ने, नमाज़ा पढ़ रहे ने, ये रख ने, तोड़ी बड़ी मौज बड़ी, रेस्टोरेंट जाओ खाना खाओ, ऐ करो। तो जिस वेले कारफे लड़ाई और पिट्टो कुट्टी पैंदी है, फिर शैतान भी नस जाता है,
अल्लाह नू वैसे ही नहीं बंदे ने फड़िया, फिर भी अल्लाह की तरफ आ जाए तो अल्लाह पाक फिर भी कबूल कर लेता है। तो अल्लाह इज़ वेरी जनरस, अल्लाह सत्तारी वाला है, गफ़ारी वाला है। अल्लाह पाक मुझे भी आपको तौफीक अता फरमाए। और ये जो सबक आपने सीखे इन 10 दिन में, लाइक आई हैव मेंशन, नाउ द टाइम फॉर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन नहीं आती तो सीख लें, ये अभी आपको बताएंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह।